सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। बेशुमार अथा अगनत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी, सैभंग गुर प्रसाद। सलोक वारा ते वधीक, महला पहला। उतंगी पैहोरी, गहरी गंभीरी। ससुर सुहिया किवकारी, निवन ना जाए थनी। उतंगी पैहोरी, गहरी गंभीरी। ससुर सुहिया किवकारी, निवन ना जाए थनी। गच जे लगा गिड़वाड़ी, सखिए धौल हरी। से भी टहंदे डिठ मैं, मुंदना गर्भ थनी। गच जे लगा किड़वाड़ी, सखिए धौल हरी। से भी टहंदे डिठ मैं, मुंदना गर्भ थनी। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। अज तो सिख धर्म दे बानी गुरु नानक पिता पातशाह तिन्हां दी उचारित की हुई पावन बाणी श्लोक वारा ते वधीक, जिसकी विचार आप अज तो आरंभ करन जा रहे हाँ। इस पावन बाणी के अंदर गुरु नानक सिंह जी के 33 श्लोक उच्चारण किए हुए हैं। हरेक श्लोक का जो विषय है, कॉन्सैप्ट है, वो वखरा वखरा है। हुणे आप जी ने पहले पावन श्लोक का पाठ श्रवण किया है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी गुरु असीस गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी
ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ, ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਰਬੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ, ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੰਦਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਤਿਕਰ, ਸੱਚ ਤਿਕਰ, ਮੂਲ ਤਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ,
इन्हां दे अंदर भी एक एक ऐब है, एक एक रोग है। पर जो मनुख के हिस्से रोग आया है वो हंकार का रोग आया है। हौमै रोग मानु को दीना, काम रोग मैगल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोहे पतंगा, नाद रोग खप गए पतंगा। हिरन रोग है, पतंगे रोग है, हाथी नूं रोग लगा होया है। पर एक रोग मनुख नूं भी लगा होया है। जो मनुख का रोग है वो हौमे का रोग है, हंकार का रोग है। सो विचार अधीन शब्द के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जोबन के अहंकार का जिक्र किया है कि जिस तरह धन का हंकार, सुंदरता का हंकार, उच्ची जात का हंकार, प्रभुता का हंकार, विद्वता का हंकार, ये सारे रोग ने। इन्हां कारणों करके ही ये हंकार साडे अंदर जन्म लैंदा है। पर सतगुर सच्चे पातशाह आखदे ने कि मनुख नूं अपनी जवानी, अपनी जोबन का भी रोग है। जोबन ते हंकार है, जोबन के अंदर हंकार का रोग लगा होया है, जवानी के अंदर हौमे का रोग है। शब्द की विचार ना लैके चलन का यतन करिए। पातशाह आखदे ने तंगी का अर्थ है कि लम्मे कद वाली, पैहोरी का अर्थ है कि जिहड़ी जीव स्त्री पूरे जोबन ते है, लम्मे कद वाली ते पूरे जोबन ते गहरी गंभीरी का भाव अर्थ है कि लम्मे कद वाली, जोबन वाली जीव स्त्री बड़े गहरे तल ते हंकार दे विच फसी हुई है, हंकार के अंदर लवलीन है। क्यों? क्योंकि जवानी है, जोबन है। ते साडे जीवन के 3 पड़ाव ने। पहला जिहड़ा पड़ाव है वो बचपन, उस तो बाद जवानी, उस तो बाद बुढ़ापा। पर समझण का यतन करना कि जिहड़ा जवानी का पहरा है, जिसनों अपना जोबन कहते हैं। हुण जोबन एक ऐसा पड़ाव है कि जोबन के अंदर मनुख के कोल ताकत भी है, आज़ादी भी है। हुण बच्चे के कोल इन्नी आज़ादी नहीं, पर जोबन के अंदर ताकत है, आज़ादी है, कुल है। इतना नशा है जोबन का, अपनी ताकत का, अपनी जवानी का। इतना नशा है, ये जो ऐब है हंकार का अंदर। पातशाह आखदे ने कि ये जिहड़ा जोबन का नशा मनुख नूं सच दे अगे, गुणां दे अगे झुकण नहीं देंदा। क्योंकि मनुख नूं अपनी ताकत ते, अपनी जोबन ते, अपनी जवानी ते माण है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी पढ़िए कि गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने बार-बार बाणी के अंदर जोबन के हंकार का जिक्र किया है। क्योंकि इत्थे गल जोबन के हंकार की चल रही है। ते बाबा फरीद सिंह जी का वचन है, फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, धन जोबन अगाह, खाली चले धनी स्यों, टिब्बे ज्यों मीहा। बाबा फरीद साहब आखदे कि जिन्हां दे अंदर जोबन का, धन का, प्रभुता का,
गर्व पैदा हो जाता है, हंकार पैदा हो जाता है, उस शुभ गुणा तो खाली, रब जी की बख्शिश तो खाली इस संसार में चले जाते हैं। जिस तरह गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज जी के बचन है, उन्होंने जोबन के हंकार को नशा आख्या है। जोबन धन प्रभता के मद में अहनिस रह दीवाना, कि दिन रात जोबन के नशे अंदर, धन के नशे अंदर, प्रभता के नशे अंदर मनुख पागल बन के जिउ रहा है। ऐसा वचन गुरु नानक सिंह महाराज जी का भी है। उन्होंने साडे जीवन के अंदर 5 ठग ने, जिहड़े ठग साडे आत्मिक जीवन नूं लुट रहे हैं। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने राज माल रूप जात जोगन 5 ठग, इन ठगी जग ठगिया, किने ना रखी लज, कि राज ठग है, पदार्थ ठग ने, रूप ठग है, जात ठग है, जोबन ठग है। पाप की राज दे हंकार ने, पदार्थां दे हंकार ने, रूप दे हंकार ने, जात दे हंकार ने, जोबन दे हंकार ने साडे आत्मिक जीवन ठग लिया है। ते पातशाह गुरु नानक सिंह महाराज आखदे ने, वो तंगी पैहोरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सुहिया किप करी निवन ना जाए थनी। विचारधीन श्लोक के अंदर सतगुरा ने 2 पात्र बनाए ने। 2 पात्र बना के गल की है। 2 जीव स्त्रियां का जिक्र किया है। एक जीव स्त्री नूं सस आख रहे ने, दूसरी जीव स्त्री नूं नूंह आख रहे ने। इस रिश्ते के राही सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जोबन के अहंकार का जिक्र किया है। क्योंकि जो पात्र पातशाह जी बनाते ने ते आपस में गल कराते ने, ते जिहड़ी गल है वो समझनी सौखी हो जाती है। जिहड़ी गर्भवती हंकार के अंदर मस जिहड़ी जीव स्त्री है, वो एक दूसरी जीव स्त्री नूं आख रही है कि मेरा जिहड़ा हंकार है, मेरे अंदर जिहड़ी हौमे है, ये हौमे मैनू मेरी सस के अगे झुकण नहीं दे रही। ये तो सस तो भाव है कि गुणा के अगे, सच के अगे मेरा हंकार मैनू किसी दैवी मनुख के अगे जा चंगी सस के अगे मैनू मेरा हंकार झुकण नहीं दे रहा। ते मनुख कई बारी बाहरों झुक जाता है, पर मन नहीं झुकता। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने असल जिहड़ा झुकना है वो मन का प्रवान किया है, तन का नहीं। क्योंकि तन करके तो कई बारी कपटी मनुख ही झुक जाता है। सतगुर सच्चे पातशाह सकी बार अंदर जिक्र करते हैं, अपराधी दूना निवे जो हंता मिलता है, अपराधी दूना निभता है, पर अपने स्वार्थ लिए निभ रहा है। सबको निवे आपको, अपने स्वार्थ वास्ते। पर जो वाकई ही अंदरों निभता है, पातशाह आखते ने निवे सो गौरा होए। गौरा का अर्थ असल गुणवान वही मनुख है, सियाणा ते सूझवान वही मनुख है, जिहड़ा मनुख सच दे अगे झुकदा है, गुणा दे अगे अपना आप समर्पण कर दिंदा है। जिवें आनंद सिंह की बाणी अंदर भी पातशाह आखदे ने, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनूं सिर सौंपीए, विचों आप जाए। कि सतगुरां दे अगे, ब्रह्म के ज्ञान के अगे, रब्बी गुणा के अगे असीं झुकीए।
अपने हंकार ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ, क्योंकि हंकार ਸਾਡੇ अंदर एक ऐसा ऐब है, ऐसा रोग है, वो भी जवानी का रोग, जोबन का रोग, जिस जवानी के अंदर मनुख के कोल ताकत है, एनर्जी है। मनुख बहुत कुछ सीख सकता सी, बड़ा की जा सकता सी, पर हंकार ने साडे आत्मिक जीवन के विकास के अंदर रोक ला दी। आत्मिक जीवन के विकास के अंदर रोक ला दी कि इस हंकार ने सानू कुछ सीखन नहीं दिता। जिवें धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी 62 वरियां की उम्र के अंदर गुरु अंगद सिंह महाराज जी की शरण में आके रब्बी ज्ञान को समझते हैं। ख्याल रखना उस समय गुरु अंगद सिंह जी की उम्र छोटी है। बिरद बाबा गुरु अमरदास महाराज जी की उम्र बड़ी है, पर उन्हें नहीं सोचा कि मेरी तो उम्र बड़ी है, मैंने 21 साल तीर्थ यात्रा करते हो गए, तीर्थों से स्नान करते हो गए, पर नहीं, हंकार पासे करके उन्होंने रब्बी गुणां नूं, ब्रह्म की विचार नूं समझिया। कहण तो भाव कि हंकार सीखण दे अंदर रोक पैदा करता है। हंकार साडे आत्मिक जीवन की शांति नूं, आत्मिक जीवन के सैज नूं खत्म करता है। हंकार जिथे साडे आत्मिक जीवन नूं बर्बाद कर रहा है, उत्थे इहो हंकार बाहरले जीवन के अंदर भी, परिवार अंदर, समाज अंदर इहो हंकार कलेश का, झगड़े का कारण बनता है। इस करके हजूर बाणी विच आखदे ने, धन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा। ही भाई, तेरा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अपने इस धन का, इस जोबन का गर्भ ना कर, हंकार ना कर। बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले, वो हंकार के अंदर आत्मिक जीवन उन्हां दा सड़ जाता है, गल जाता है। जिस सतगुरां दे नाल जुड़ के जिंदगी अंदर आनंद आना सी, हंकार उस रस्ते विच रुकावट बन के बैठा है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु नूं पा के जिथे आत्मिक आनंद आना सी जिंदगी अंदर, हंकार साडे ते सतगुरां दे, साडे ते साडे मूल दे विचकार रोक ला के बैठा है। धन बिर का एक ही संगवासा, जो हूँ मैं भीत करारी, हंकार साडे अंदर कंध है। इस करके बादशाह आखदे ने कि जे सुखी होना है, आत्मिक तल ते बाहरमुखी, अंतरमुखी सुखी होना है, तो उहदे वास्ते बादशाह आखदे ने सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। सुखी बसे, कोई सुखी बसदे नहीं जिहड़े अपने अंदरों अहंकार नूं खत्म करके अपने मन नूं गुरु वाले पासे ढाल लैंदे हैं। ते जो दो पात्र बना के विचार अधीन श्लोक के अंदर पातशाह जिक्र करते पे ने कि एक सखी आख रही है कि मेरे अंदर हंकार इन्ना है, मेरे अंदर हौमे इन्नी है कि जिहड़ा हंकार मैनूं निभण नहीं दे रहा। पृथ्वी चंद के अंदर हंकार ही सी कि मैं गुरु का पुत्र हाँ, मेरे हाथ में प्रबंध है, मेरे को धन है, माया है। कि गुरु रामदास साहब सच्चे बादशाह समझाते हैं, काहे पूत जागृत हो संभाव,
तू क्यों झगड़ना है, क्यों इस धन का तू अहंकार कर रहा है, मान कर रहा है। पर सारी जिंदगी उन्होंने हंकार ने उन्होंने तपाया, दुखी किया। प्रीति चंद पहला गुरु पिता गुरु रामदास सिंह जी नाल झगड़ता है, फिर हंकार की वजह कारण ही गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी के नाल झगड़ रहा है। इस हंकार के कारण ही छेवें पातशाह जी के नाल वो झगड़ता है, भाव कि बचपन के अंदर ही वो बदला लेना चाहता है, उन्होंने खत्म करना चाहता है। इस सारे वर्तारे का मूल कारण हंकार है। पर दूसरे पासे गुरु अर्जन पातशाह महाराज शांति के पुल तती तवी ते बैठ के भी शांत ने, सहज विच ने, सहनशीलता के अंदर ने। कि पातशाह अगे कृपा करते ने, गच जे लगा गिर बड़ी सखी धौल हरी। एक सखी हंकारी जी सखी सी, जिसने हंकार किया होया सी, वो दूसरी सखी नूं कह रही है कि मैं अपनी सस दे अगे झुक नहीं सकती, क्योंकि मैनू अपने जोबन ते, अपनी जवानी ते, अपने रूप ते, अपनी ताकत की मान है। पर जिस सखी को वो गल कह रही है, वो सखी बड़ी सियाणी है, बड़ी सूझवान है। ते कई बारी मनुख अपनी हंकार का किसी भी जिक्र करे, किसी माड़े मनुख के अगे, वो सगों हंकार नूं होर बढ़ावा दिंदा है। पर किसी सियाणे के अगे जे असीं कोई हंकार के बोल बोलीए तो उथों बड़ी प्यारी सेध मिलती है, उत्थे हंकार नूं बढ़ावा नहीं मिलता। वो सियाणी जी स्त्री जिहड़ी समझा रही है, गच जी लगा गिड़ बड़ी सखी धौल हरी। सखी कहती है कि पहाड़ा वर्गे तगड़े उच्चे महल जिन्होंने पलस्तर लगा होया सी, बड़ी मजबूत घर, बड़ी मजबूत महल। सखी आखदी कि मैं वो भी ढहिंदे हुए देखे ने, वो भी समा पा के विंस गए, ढह पे। ते आखदे ने कि सेपी ढहिंदे डिठ मैं मुंदना गर्भ थनी, पर तेरे जोबन दी की पाया है। तेरी इस जवानी की की पाया है कि जिस जोबन ते तू इन्ना हंकार कर रही है, जिस जोबन ते तू इन्ना मान कर रही है, पर तेरी इस जोबन की की पाया है। भगत रविदास जी का बड़ा प्यारा वचन है, तू काहे गर्भ बावली, जैसे भादो मराद तू तिसते खरी उतावली। कहते तेरी पाया तो इन्नी को है कि जिस तरह भादो के महीने अंदर खुंबा निकलदियां ने ते कुछ समय बाद वो बिंस जांदियां ने। कहते बस जवानी इसी तरह ही है, धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़ी दिन चार, भबन केरे पत स्यों ढल ढुल जुमन हार। रंग मान ने प्यारिया जा जोबन नाव खुला, दिन थोड़ डे थके पया पुराना चोला। रंग मान ले इस जवानी अंदर, सेवा का रंग मानना सी, इस जवानी अंदर सच का रंग मानना सी। पर मैं तो इस जवानी अंदर हंकार का रंग माणिया, हौमे का रंग माणिया। ते जिथे सेवा ते सिमरन प्रभु की याद में जुड़ना सी, रब्बी ज्ञान के नाल जुड़ना सी, आत्मिक जीवन के अंदर खेड़ा पैदा करना सी, सच के नाल प्यार करके आत्मिक जीवन नूं सोहना बनाउणा सी, आत्मिक जीवन अंदर खेड़ा पैदा करना सी। पर होया कि हंकार दे नाल प्रीत पै गई
पर जीवन कुमला गया। कीती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। जोबन जांदी ना डरा जे शह प्रीत न जाए। फरीदा कीती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। जोबन रब्बी प्यार तो बिना, रब्बी गुणा तो बिना ये जोबन कुमलाया हुआ है। इस करके विचार अधीन शब्द के अंदर सतगुर सच्चे पातशाह श्लोक के अंदर सानू इहो समझाउंदे कि भाई अपनी जोबन का, अपनी जवानी का हंकार ना करिए। ये जोबन, ये जवानी थोड़े समय वास्ते है, पर हंकार पासे करके अपनी इस जीवन के अंदर आनंद लैके आइए, शुभ गुण लैके आइए, तो फिर ये जी जवानी है, इस जवानी के अंदरों रब्बी गुणा की खुशबू पैदा होएगी, हंकार की दुर्गंध नहीं आएगी। जोबन का दुर्गंध विकारा की वासना अंदर नहीं होगी। जदों साडे अंदर रब्बी गुण होणगे तो ये जिहड़ा जीवन मोलिया जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। ये जवानी सी बाबा अजीत सिंह दी। इसी जवानी दे पैरे के अंदर शहीद होए ने बाबा अजीत सिंह। इसी जवानी दे पैरे के अंदर होए ने शहीद भाई तारू सिंह। भाव कि उन्होंने इस जवानी को किस मार्ग पर लाया, किस पासे लाया। ये जवानी पैरा जो मिलिया है, इसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी एनर्जी है, बड़ी पावर है। सो इस जवानी पैरे के अंदर असी कुछ सीखिए, गुणा को धारण करिए। जिथे बाहरी तौर पर साडा विकास होएगा, जदों जवानी पैरे के अंदर सीखांगे, उत्थे ही आत्मिक जीवन के अंदर भी साडा विकास होएगा। जदों हंकार नूं पासे रख के असी सच के नाल, रब्बी गुणा के नाल जुड़ांगे। सो श्लोक के अंदर पातशाह जी ने इहो उपदेश दिता है कि अपनी इस जवानी का, जोबन का गर्व ना करिए, हंकार ना करिए। इस जवानी नूं, जोबन नूं गुरु चरणा वल प्रेरिए। सो आने वाले श्लोकों की विचार लड़ीवार इसी तरह आपां समझण ते विचारन का यतन करांगे। कोई भुल चूक की खिमा, अदब सत्कार आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।